Don't you die on me, you bastard! You've never given up on anything before! Fight, damn you, fight! Ah! Morning, everybody! Hey, look, that monkey has a Haley on its ass! Oh, go to hell. Not till you buy me a new TV. I will never buy you a TV! Fine, then you can walk home. You idiot! Cops already? What are we, next door to a freaking Krispy Kreme? You're thinking about donuts now? No, I'm just saying the cops got here fast. What the hell do fast cops have to do with a Krispy Kreme? Because cops love donuts! You are not making any sense! Stan, as long as you're still under house arrest, I might as well give you a conjugal visit. Morning, friendly. Haley, I said no monkeys! And I said it was okay. I'm gonna build a habitat in the basement. Well, habitat/theater workshop. In 6 weeks, we'll have the best all-monkey production of Cats you've ever seen. I'm part of a workplace ensemble. I bet he's the sarcastic guy, and he's the dumb guy. Oh my God, he must be the black guy who doesn't talk. Hello? Yes. I've waited my whole life to do this. The finger pyramid of evil contemplation. Feels good. I bet we could hit the house of the bully who went all Tom Sizemore on your eye. Oh, I wish I could get that guy back. I'd like to dress up like a girl and make him have sex with me. Then say, "Ha! I'm not a girl! You just had sex with a boy who hates you! Ha ha!" Yeah, let's keep that plan between you, me, and the string of therapists who won't be able to help you. What's your deal, bozo? We're humiliating you. I have no deal, friend, because I know you soak not me, but rather all those who have ever hurt you. That's so true. We can at least take solace in the fact that there was nothing we could have done to prevent that. Sorry, my, war veteran uncle here blew up your car. No matter. A car is merely a means of transporting pizzas. Thankfully, the pizzas survived, for they contain the dough of life. Oh, I'm sorry I drifted off. Are you on Thorazine? What the hell? I mean, what year is it? Who's president? For lo, when a pie reaches not its destination, a trust is broken forever. Yeah, look, Kung Fu, I prefer my crazy and my bread. One thing delivering pizzas has taught me is that Easy Street isn't always the best route. So true. Okay, Steve, when people start a sentence with, "What delivering pizzas has taught me," that's the go-ahead to tune out. I'd like Roger to join me on this one. What? No! I'm your disciple. You chose me. He doesn't even like you. I really don't. On your last delivery, I put a tack on your seat, but apparently it just split the cheeks. Very disappointing. Oh, this is gonna be life-changing. That was totally life-changing! Yet I was canned for your sins. But I forgive you. Wait, Mitch, don't go! I need another slice of truth! Made me look like a boring housewife who's only good at cleaning. Oh, that is an outrage! Thank you, Roger. You're a terrible cleaner. Look at this place. It's filthy. Yeah, that's a big, dirty S for schmutz. Feet, please. Thanks, Francine. No, it's me, Roger. I'm finally taking charge of this pigsty. Now I'm going upstairs to clean behind the bookshelf. Yes, Stan, there's a behind the bookshelf. I told you, Francine, it's too expensive. What are you doing, you animals? Feet on the couch? I just steam cleaned. Salsa on the carpet, but I vacuumed. Coasters! Ah! Oh, my God! Oh, my God! My son's a slut! I just made that bed! What the hell? No problem. Got it under control. Roger, what are you doing? Is that gasoline? Mm-hmm. Windex is just a Band-Aid. I realize that now. There's only one way to win the war on dirt in this house. Steve used to really look up to me, but now it's like he's not into me anymore. Wow, that's really boring. It's like my son's rejection is bringing up all kinds of feelings I don't understand. Oh. Okay, not sure what to say here. Well, I'm off to petition my college for an Eskimo Studies program. What? They don't have one?
I'm sorry, Stan. I'd love to help you, but the Eskimos, their plight, that's the real stuff here. You care about the Eskimos? Yeah, I love their pies. Keep going. Walk, 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 walk. How could the dean give our Eskimo studies money to the stupid fraternity council? It's all political. I hate it. Fraternities. Bunch of lazy, immature guys getting drunk on every kind of liquor known to man. I mean... Hi, can you please help me? I'm not drunk. Hey, what's that guy doing? Oh, that's a cake stand. Gets the beer into your system faster. I'm sorry, I was just overcome with joy. Anyway, you mind if I, 1, 2, 3, 4, 307, 308, 309. About an hour ago, I heard somebody mention chili fries. What's happening with that? Well, that's a shame, because fraternities really do represent virtue, charity, and brotherly love. Now, if you'll excuse me, I'll be playing foosball in the rape room. Well, if I'm gonna be any fun at the luau tonight, I better hit the sack. No you don't. Brothers sleep. Pledge is clean. Excuse me, clean? Yeah, after a house party, pledges spend the day cleaning up. Why don't you start by cleaning that up, bitch? Tired of getting spanked by dudes anyway. And you'll be glad to know that a portion of your purchase goes to help foster children in the greater Lang... You lost me at help. Now to plant my vineyard. Explain these foster thingies. Foster children? You know, wayward children taken in by families. When you say wayward, I hear eager. And when you say children, that group, I post a summary of this episode by 6. Those losers are pretty punctual. Syphilis! Ooh la la! Great. Thanks to your gassing on, I completely missed why Mr. Belvedere is stopping on his hat. The internet is not going to be happy. My stars, who is that enchanting Rubenesque vision? She's like a female Mr. Belvedere. Yeah. Oh, my Debbie. That should be me handling your folds and squeezing your exquisite back fat. But you don't know you're cheating on me yet, so I forgive you. Well, maybe now you'll listen to us. You've become a man obsessed. We're all so worried about you. We have Grey's Anatomy on season pass, yes? Yes. Hi, reservations for 2 under Roger? We don't take reservations. Excellent. Thank you, Sherry. My name is Helen. Excellent. I like your face. Look, my boyfriend and I just broke up, but I'm still kind of holding out hope that we'll get back together. Oh. You know, why don't we switch seats, huh? Chinese fire drill. We're having fun. Oh my God, that's my ex-boyfriend. I can't believe he's moved on. You know what would teach him a lesson? If he saw me and you make tears of joy. Getting my ass kicked off the radar. You got the money? You got the manners to say hello first? Hello. Been out in the middle of the night and he hasn't come home. Where do you think he goes? No idea. But ask me if I want a mimosa. That's a question I can answer. Francine, if we order DirecTV now, we get the tennis channel for just pennies a day. And Shirley's standing by to help us. Forget it. Shirley? What did you do? Wow, Stan, you have a real problem with competition. There's no way you can enter that contest. You're right. I'm not gonna put my wife's life in danger just for a set of wigs. Come again? The prize is a lousy set of wigs. The prize is a set of wigs? Yes. Wigs you'd probably just put in the attic and never check on to see if anyone were playing with them or borrowing them to audition for the community theater? Exactly. Stan, you've got to skate in this competition. For Francine. She hasn't been this happy in ages. But you just said I shouldn't. That was a test. You failed. God, you're selfish. Bad Stan. Oh, I meant to say bad Stan and then slap you. Bad Stan. I don't know. I like it both ways. We don't have a chance. You're magnificent. Hello. Roger, where did you learn to skate? On my planet. You really haven't read my MySpace page, have you? You say you have, but you really haven't. Help me up, Stan.
Okay, she's just gonna sit there. That's okay. This is her issue, her drama. Okay, we're making the turn. We're heading back. Just stay focused. Don't look at her. Oh, should I trip over her? Would that be funny? Or would that be mean? Funny or mean? Funny or mean? Stan? Oh, too late. We passed her. Stop, stop, stop! You do know the competition's tomorrow, don't you? Yeah, of course. Okay, good. Then why are you skating like a wiener? Don't I do a sal cow right there? You call that a sal cow? It looks like you have mad sal cow disease. That's right, your skating has a spongiform encephalopathy, bitch. Ah, my beauties, my tranquil beauties, calm me. More friend than hairpiece. I thank you. I can't skate with you, Roger. What are you talking about? I want to skate with Francine. You can't do this to me. You can't leave me here. Everyone's looking. Everyone's looking! Can you keep it down, huh? No one's looking at you. We're trying to watch the skating here. Everyone's looking! You won, Roger? Of course. I'm the best. How'd you find a partner? Ow! Why? Why? Greg, keep your head up for God's sake. करेंगे ना यहाँ आ रहे ऐड टाइटल आ रहा है टाइटल में आपने पहले पेज का नाम लिखना है अबाउट अस जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे यू कैपिटल ए कैपिटल बीच में एक स्पेस और कोई चीज़ नहीं अबाउट अस लिख के आपने इसको कर देना है यहाँ से पब्लिश अच्छा एक मिनट ये पब्लिश करने से पहले ये देखें कि यहाँ डिस्कशन के आगे क्लोज लिखा रहा है ये डिस्कशन का ऑप्शन है इसका क्या लिखा रहा है ओपन आ रहा है क्लोज आ रहा है क्लोज आ रहा है ठीक अब इसको पब्लिश करना पब्लिश करेंगे तो आपका एक पेज बन जाएगा अब यहाँ देखें ये पेज यहाँ पे शो हो रहा है हो रहा है ना नहीं हुआ क्या हुआ पेज नजर नहीं आ रहा एक मिनट कैंसिल करो एक मिनट आई डेट क्या है लैपटॉप का टाइम ठीक है 3 मिनट ठीक है पब्लिश हो गया अच्छा अब यहाँ पे देखिए अब ये क्लिक के लिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये पेज का टाइटल आएगा अबाउट अस ठीक है और ये आएगा उसका यूआरएल क्या आ रहा है यूआरएल अब यूआरएल देखें जो हमारे पेज का नाम वैसे ही यूआरएल आ रहा है ना ऐसा ही है यूआरएल हमेशा आपका जैसा नाम हो वैसा ही यूआरएल होना चाहिए कैरेक्टर उसके क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए और बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए क्या होना चाहिए डैश होना चाहिए डैश बस ये आपका यूआरएल बिल्कुल ठीक है अब मैं बस आपको दिखाने के लिए किया तो कैंसिल कर दें अब यहाँ पे एक और पेज हमने बनाना है एक पेज बन गया अब यहाँ फिर ऐड पेज पे क्लिक करें इस पेज का आपने नाम रखना है कॉन्टैक्ट स्पेलिंग ध्यान से रखने जो मैंने लिखे हैं कॉन्टैक्ट ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है इसको भी आप ऐसे पब्लिश कर दें उसके बाद एक और पेज बनाना है उसका नाम रखना है प्राइवेसी पॉलिसी मार दिया
ना लिखे थोड़ा मारो अब एक और पेज आपने लास्ट ऐड करना है, इसका नाम रखना है टर्म्स एंड कंडीशन। टी और सी कैपिटल रखना है, एंड के छोटे होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के इसको भी आप पब्लिश कर दें। अब ये जरा नीचे देखें, हमारे कितने पेजेस बन गए हैं? 4 पेजेस। कितने बन गए? 4 पेजेस। ठीक है, अब मजे की चीज की तरफ आते हैं। आपने अबाउट अस को खुद लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी को खुद लिखनी है और टर्म्स एंड कंडीशन भी खुद लिखनी है। ठीक है, अब ये लिखनी क्या है, इसके अंदर होता क्या है, आप किसी भी दुनिया की वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ओपन कर लें। मैं आपको वेबसाइट पर देता हूँ, उससे आप देख लीजिए। skins.net में वैसे ना लिख लेना, बस आइडिया देने के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है। प्राइवेसी पॉलिसी आपको अपने कंप्यूटर के अक्षर का नाम था, फोर्थ से कर लो, फोर्थ से नेटवर्क, फोर्थ नेटवर्क वो बड़ी वेबसाइट है, जो नॉर्मल वेबसाइट होता है नेटवर्क। आप इस तरह की नॉर्मल वेबसाइट पे जाएंगे ना, लास्ट में तो ये प्राइवेसी पॉलिसी नजर आएगी आपको पेज, एंड में बना इसको ओपन करेंगे ना, तो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो एड्स नज़र आ रहे हैं या हमारी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है तो उसके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे, इसे कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। क्या कहते हैं? प्राइवेसी पॉलिसी। ये आप चैट जीपीटी से आइडिया हो जाती है प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह लिखनी है। तो आपने चैट जीपीटी का कहना है कि मेरी वेबसाइट इस चीज़ पे है, हम ये काम करते हैं, मैं ऐसे एक्सपर्ट हूँ एक पर्सनली, और मेरी वेबसाइट पे एड्स भी हम लगाएंगे कल को, प्राइवेट एड्स वगैरह, तो काइंडली मुझे अपनी वेबसाइट के लिए परफेक्टली एसईओ ऑप्टिमाइज प्राइवेसी पॉलिसी लिखो। सही है, चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हो, बट उसको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन। सही है, तो उसमें भी ये इशू आएगा। हाँ सर, लेकिन बर्दाश्त उसमें वेरिएबल है। सही है, तो उसको भी आप टर्म्स एंड कंडीशन भी आप देख सकते हो। वैसे टर्म्स एंड कंडीशन में होता है, प्राइवेसी पॉलिसी में होता है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट में आ रहा है उसके लिए क्या रूल है, उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है कि नहीं है, आपकी वेबसाइट सेफ है कि नहीं है, जहाँ पर जो ऐड चल रहे हैं वो सही है गलत है। ये होती है प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब जो बंदा मेरे ऑफिस में आ रहा है उसकी सेफ्टी क्या है। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर कोई बंदा मेरे ऑफिस के ऊपर मेरी चीज़ को चोरी करेगा, कोई डाटा चोरी करेगा, उसके केस में क्या एक्शन ले सकते हैं। कोई नाम मेरा रखेगा, PAP ट्रेनिंग नाम रख ले, ठीक है, कोई ब्रांड का नाम चोरी करे, लोगो चोरी करे, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा। प्राइवेसी पॉलिसी होती है अपनी ऑडियंस के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन होती है किसी और बंदे के लिए, कि वो अगर कोई वेबसाइट को नुकसान करेगा तो क्या रूल है बहर है। तो ये दोनों पेजेस मैंने इसलिए बनाए। अबाउट अस के अंदर क्या लिखना है? अबाउट अस के अंदर आपने अपने बारे में लिखना है कि आप एसईओ एक्सपर्ट हो, आपकी वेबसाइट में किस तरह का डाटा लिखा जाएगा, वो डाटा कितना सर्च करके लिखते हो आप, वो इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो ये होता है अबाउट अस, कि आपने अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में बताना। सही है, तो चैट प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो। अबाउट अस भी आप अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में बता के चैट जीपीटी को बेस्ट पे अबाउट अस है, तो अबाउट अस आपने डाटा फोल्डर रखना। पीछे बचा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के अंदर कुछ लिखना नहीं है। ये देखो, ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सही है, ये है अबाउट अस, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और ये है
कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपने प्लगइन्स के अंदर जाना है और आपने एक और प्लगइन ऐड करना है, ऐड प्लगइन। चलो प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड प्लगइन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लिखो कॉन्टैक्ट फॉर्म। बेटा कर लो घर को मैंने करना कर बस है दोबारा सही करते ठीक है। ये तो वो होगा सर मेरे पास। अच्छा अभी तो प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म देखें है आपके पास ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर दो। कॉन्टैक्ट फॉर्म ये वाला प्लगइन आएगा। हेलो इतने स्लो आया लेकिन ये लगा हुआ है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर दो। वो कुछ भी ना करना बेटा, अगर थीम का आना है दोबारा बाद में पोस्टिंग चेंज करनी है तो फिर यहाँ पर कुछ भी करने का फायदा नहीं है। बस जाने वो आई थी तो मैं कंट्रोल किया कैमरा से वेबसाइट और टेम्पलेट से होगा कैमरा से वेबसाइट टेम्पलेट उसकी वीडियो को डाल दिया बंदे की सोच देखने कितने आगे भी है नहीं वो बस क्लिक करना है। अच्छा अभी कर लिया उसके बाद ये प्लगइन आपका बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा होगा और हाँ कॉन्टैक्ट इसको ओपन करो कर लिया हो गया। अब यहाँ एडिट पे क्लिक करो, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में बना हुआ है, इसको एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे मेल के अंदर जाओ, फॉर्म के अंदर मेल होगा, मेल के अंदर जाके ये पहले वाले खाने में 2 लिखा हुआ है ना, 2 को ये खाली कर दो, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखो। क्या ईमेल है? मैंने गलती लिखी है, वो कह रहा मैंने देखी है अच्छा ये 2 के अंदर अपनी ईमेल तक आगे आ दी अब इसको सेव करो। वैसे 2 के अंदर लगानी है, इसको यहाँ से कर लो सेव करने के बाद ये ऊपर एक कोड आया होगा अभी, ये वाला कोड इसको कॉपी कर लो। ये वाला कॉपी आप अपने कॉन्टैक्ट्स पेज में जाओ, पेजेस में जाओ, कॉन्टैक्ट्स पेज में जाओ। कॉपी नहीं हो रहे हैं अच्छा कॉन्टैक्ट्स हाँ हेलो सही है हो गया
अब यहाँ पे काम करो, कॉन्टैक्ट पेज ओपन कर लिया। यहाँ पर पहले मैं आपको पेज दिखाता हूँ। ये व्यू पेज पे क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करो व्यू पेज पेज में जाना है बेटा, कॉन्टैक्ट पेज जो बनाया हमने। अच्छा ये पेज ओपन करके ये देखो जरा, आपका पेज दिखाता हूँ आपको। अब ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। यहाँ पर चीज़ नजर आ रही है आपको? फॉर्म फॉर्म खाली है ना? बिल्कुल आपका भी खाली है। हाँ खाली है। तो ये एक मिनट पहले इस तरह ओपन करो ना, यहाँ पेज ओपन करके यहाँ पर क्लिक करो आगे देखो पेज ओपन हुआ है, उसको ओपन करो। है यहाँ पे चीज़ नहीं ना? पेज शो हो रही है बस। हाँ मैंने अपनी एपिसोड का वो बना लिया है। अब यहाँ पे देखो, नहीं इसके भी ऐसे शो हो रहा है। यहाँ पे ना इस जगह पे वो कोड कॉपी किया, उसको पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अपना सेव कर लो। यहाँ से कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ से कर लो सेव करने के बाद दोबारा कॉन्टैक्ट पेज में जाओ, उसको रिफ्रेश करो, आपका यहाँ पर फॉर्म आ गया। कॉन्टैक्ट पेज ओपन करो, नीचे कोड पेस्ट करो जहाँ पे राइट ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट करो, सेव करो। पेज ओपन करो, कॉन्टैक्ट रिफ्रेश करो, कंट्रोल आर से रिफ्रेश हो जाता है। आ गया?
और इसलिए नहीं आती कि हमने सवाल नहीं पूछा। हमने इस चीज़ को तब सीरियसली नहीं लिया, हमने कोई लॉजिक नहीं पूछा इस चीज़ के बारे में, इससे लॉजिक क्या है। और ये सवाल पूछना हर बंदे के लिए भी जरूरी नहीं होता। लाइक कुछ बच्चे ऐसे एक्टिव होते हैं कि वो चीज़ों को बड़ी जल्दी पिक कर रहे होते हैं, या वो चीज़ रह जाती है वो अपनी सेल्फ के ऊपर वो सीख जाएंगे, मतलब वो रिसर्च करने के, मतलब अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने के। अब जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था इसकी एक्सेल का टेम्पलेट दिखा रहा था, तो मैंने भी इसको सिखाया ना, शायद इसने किसी और सीखा होगा। तो कंगे लेके उसने क्या कर लिया, सीख लिया ये चीज़ ऐसे लगती है। उसकी सर्च होंगे वो कर देगा। आप में से कुछ बच्चे वेबसाइट को पिक कर रहे हैं जिन्हों को उन्हें पता है कि जो चीज़ मैं अभी सीख रहा हूँ बाद में मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस दिन इसके लैपटॉप यहाँ पे टैच था, उस दिन इसकी वेबसाइट को कोई काम नहीं हो। आप बाकी आप सबको मैं साथ करवा रहा हूँ ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ऐसे नहीं ऐसे करनी है, वो बस सुन रहा था, देख रहा था। उसने वही चीज़ें अपनी वेबसाइट पर घर में जा रही। जिसने घर में जाकर की यहाँ बैठ के नहीं सीखी उसको चीज़ें अभी शायद आती हैं, और जो लोग यहाँ बैठ के सीख रहे हैं उनको नहीं आती। कितने अफसोस की बात है। सवाल आप करेंगे नहीं, बगैर सवाल के जवाब आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ी थोड़ी क्या कर सकते हैं कि बिस्ती है मैं कर सकता हूँ, शायद आपके अंदर गलती जाके कि आप लोग सवाल करें। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने फीस भी इसी चीज़ की दी है, पूछने की। नहीं पूछना तो मर्जी है, ऐसा समझे कि आप लोगों ने मुझे हमें पैसे देना होगा। जिसको आप कोई चीज़ दे रहे हैं वो उस चीज़ को हलाल करें। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बंदा चीज़ दे रहा है वो भी हलाल करे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा कॉन्टैक्टस पेज के अंदर फॉर्म लग गया, और ये फॉर्म हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर कॉन्टैक्टस यानी कि मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ऐसा ही है। मतलब अगर कोई बंदा यूज़र हमें कोई मैसेज करना चाह रहा है, हमसे बात करना चाह रहा है, हमें कोई सजेशन देना चाह रहा है, मशवरा देना चाह रहा है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर आके यहाँ पे एक मैसेज लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, अपनी ईमेल लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, किस चीज़ के बारे में बात करने लगा है, यहाँ पे अपना मैसेज लिखेगा और हमें सेंड कर देगा। और जो हमने ईमेल की है ये मैसेज वहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये मकसद है कॉन्टैक्टस पेज का। जो मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगी और मुझसे बात करना चाह रही है, मुझे मैसेज देना चाह रही है, तो वो कॉन्टैक्टस पेज में जाकर मुझे मैसेज दे सकती है। क्लियर है, ये कॉन्टैक्टस पेज का रोल होता है। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का ये रोल होता है कि अगर कोई बंदा हेजिटेट है कि यार पता नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है कि नहीं है, तो वो ये पेज पढ़ ले। हमारा टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई बंदा मेरा डाटा चोरी करता है तो मैं इस पेज पे उस पर स्ट्राइक डाल सकता हूँ कि भाई मैंने तो ऑलरेडी रूल्स लिखे हुए हैं कि मेरा इन्फॉर्मेशन को चोरी नहीं कर सकता। अगर ये पेज नहीं होगा ना तो कोई बंदा आपके सारे आर्टिकल चोरी करके आप उसको स्ट्राइक नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको तो रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं। देखो ना, जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है वहाँ पर तो मर्जी चीज़ चोरी कर लें, आप नहीं क्लेम कर सकते मैंने पहले वार्न किया हुआ था। तो टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली वार्निंग होती है दूसरी वेबसाइट्स के लिए कि वो मेरा डाटा चोरी नहीं कर सकते। क्लियर है, ओके। अबाउट अस में आप अपने बारे में बताते हो और ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अबाउट अस ये आपकी पूरी वेबसाइट के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? पूरी वेबसाइट के बारे में। एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपनी वेबसाइट में लाजमी ऐड करनी है, वो ये ऑल यूज़र में जाके, ये प्लगइन्स के नीचे यूज़र का ऑप्शन है, यहाँ जाए ऑल यूज़र, आगे ऑल यूज़र में, ऑल यूज़र के अंदर जाके ये एडमिन का आपकी प्रोफाइल बननी है, इसको एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे यूज़र नेम अपना एडमिन ही रहेगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट नेम अपना लिखें
राउफल का आपका असल में ये मैं आपको बता रहा हूँ आपका इंट्रोडक्शन जिसकी वेबसाइट है उसका भी इंट्रोडक्शन वेबसाइट के अंदर लाजमी होना चाहिए। अब आउटस में आप देखते वेबसाइट का इंट्रोडक्शन है लेकिन एडमिन के अंदर यूज़र के अंदर सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये राउफल की ऐड करके निक नेम अपना एडमिन रख लें, नीचे अपनी ईमेल आ जाएगी आपकी और फिर नीचे आपकी वेबसाइट है, फिर नीचे यहाँ पे आपने अपना बायोग्राफिकल इन्फो देना है यानी कि अपने बारे में लिखना है और मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, इसके बाद में चेंज कर देना, अच्छा लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये ना लिखना, मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे आप लोगों ने अपना अपना लिखना है। बेबी की केयर करने वाले क्या रहते हैं बीच में बेबी केयर टेकर, केयर टेकर या बेबी वाला वर्ड साथ में लगता है, बेबी सीटर ये सोच रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ आपने अपनी पिक्चर लगानी है अच्छी सी और उसके बाद आपने यहाँ से एंड में डाल के कर देना, यहाँ एड्रेस भी अपना ऐड करते हैं, ये भी अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे अपना सोशल अपनी फेसबुक का लिंक लगा सकते हैं आप और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और अपना एड्रेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप, फोन नंबर ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ईमेल में यहाँ ऐड करके चेंज क्या राउफ RAUF यानी 1234 C आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर दें नीचे, जैसे ये क्रिएट प्रोफाइल करेंगे ये होता है आपका ऑथर प्रोफाइल। क्या होती है? ऑथर प्रोफाइल। देख लेता हूँ कि मेरा ये
ये हमारा यूज़र अकाउंट था जो हमने ऐड कर दिया। ये देखें यूज़र यहाँ पे राउटर ही आ गया है। और ऐसे अगर बंदा हमारा प्रोफाइल ओपन करेगा ना तो उसको इस तरह यहाँ पे डाटा शो होगा। हमारा यूज़र इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई है। अब हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है? ये पोस्ट के अंदर जाके ये कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज के अंदर। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरीज तो शो हो रही होंगी काफ़ी ज़्यादा, नहीं आ रही अन कैटेगरी आपकी नहीं। अच्छा, यहाँ पे काम करें ऐड कैटेगरी पे, यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम है तो कौन कौन सी कैटेगरी ऐड करनी है? क्या फाइनल किया? कैटेगरी और सब कैटेगरीज मैंने कहा था निकाल के लानी। हाँ भी लोग क्या है कैटेगरीज आपकी? बेबी सेफ्टी, बेबी सेफ्टी। और दूसरी क्या है? दूसरी आ गई बेबी प्रोडक्ट। हमने बेटा एफिलिएट मार्केटिंग भी करी। एफिलिएट मार्केटिंग कर लिया तुमने। प्रोडक्ट रिव्यू, बेबी न्यूट्रिशन, बेबी सेफ्टी और बेबी न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों यार मैं क्या